Assalamu alaikum, students of class 9th. It is my lecture number 22 from the chapter number 4, that is periodicity of elements. In the previous lecture class, we have discussed the groups and transition elements, metals and metallites, metals and nonmetals, and metallites. Okay, now in this lecture we will study some periodic functions of the period, some periodic properties of atoms. Okay, we will study about the some periodic properties or function is the same thing of atom, right? What is meant by the periodic properties or functions of atom? Means period में एक period में, ठीक है, you know that there are 7 period in the modern periodic table. तो जो एक period में जो atoms हैं उनकी जो properties हैं, उनकी periodic properties जो है उनको discuss करेंगे, ठीक है. और वो and the periodic properties of the atom are as following. Like number 1 is the atomic radii. You know that radii is the plural of the radius. I have told you in the previous lectures that radii is the plural of the radius. Like nuclei is the it is the plural of the nucleus. In the same way, okay. Then we will study about the ionization energy. Ionization energy, electron affinity. Electronegativity. Atomic radii, right? Ionization is energy. It is written in short way. It is written as IE. Electron affinity. It is written in like EA in short way. Electronegativity is written as EN. Okay, and I have given the brief introduction of the ionization energy and electron affinity in the previous lecture. Okay, but here we will study all these properties in detail. Okay, now let's see the first periodic property of atom, that is atomic radii. Class atoms, we talk about the atomic volume. ठीक है, हम atomic volume की बात करते हैं. We talk about the atomic shell. ठीक है, shell की बात करते हैं. That atom has a K shell, L shell, M shell. Different atom have the different shell. Okay, but there is no definite boundary for the atom, right? क्या मतलब है कि जो एटम है उसके लिए कोई स्ट्रिक्टली डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, ठीक है. यानी कोई एटम का साइज एक्सपर्ट साइंटिस्ट दे कैन गिव देयर परसेप्शन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है. वो एक परसेप्शन दे सकते हैं, एक राय दे सकते हैं कि जो है किस एटम का क्या वॉल्यूम हो सकता है या किस तरह से हो सकता है. बट दैट इज नॉट द लास्ट थिंग, ठीक है. वो बिल्कुल कोई एक जो एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यू नो दैट वी कैन नॉट सी इट. सो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन इट्स एरिया, ठीक है. इसका जो एरिया है, जो इसका वॉल्यूम है, वो बिल्कुल सही से एक्यूरेटली डिफाइन करना कि इसका इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है. बट बाय द परसेप्शन ऑफ द साइंटिस्ट वी वर्क, ठीक है ना. इसके ऊपर काम किया जाता है, इसको सही बनाया जाता है बाय द परसेप्शन ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है. तो एटॉमिक, ठीक है. अच्छा, एटॉमिक रेडियाई क्या है? एटॉमिक रेडियाई दैट व्हेन टू द half the distance between the two adjacent nuclei of two similar atoms in touch with each other is known as the atomic radii. Okay, now I will explain you. In the definition in class you can see in the book में आपको थर्ड लाइन में मिल जाएगी, ठीक है ना. पैराग्राफ में बुक में है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में. half the distance, okay, you can see in the book, ठीक है. half the distance between two adjacent nuclei of two similar atoms in touch with each other, that is known as the atomic radii. Now I will explain it. First we will discuss
व्हाट इज द रेडियस, ठीक है ना, इट इज द एटम, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द एटम, यू नो दैट half of the diameter is known as the atom, ठीक है, sorry half of the diameter is known as the radius, ठीक है ना, radius क्या होता है, half of the diameter is known as the radius, यानी जो diameter होता है इसको 2 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास रेडियस आ जाता है, ठीक है। अच्छा एटम का रेडियस का डायमीटर क्या होगा, दिस ऑल विद द डायमीटर ऑफ द एटम, यानी कि बिल्कुल सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करें एटम, ठीक है ना, इसका ये क्या है, इट इज अ डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है। अब डायमीटर का हाफ कर दें, ठीक है, हाफ कर दें, या इसको डायमीटर लाइक 4 है, 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट क्लास, सो दैट विल बी द रेडियस, लाइक अगर हमारे पास डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का सर्कल का डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, राइट क्लास, सो दैट विल बी द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। तो बिल्कुल इसी तरह से जो एटम्स हैं उनकी स्ट्रक्चर भी जो है ऑर्बिट्स वगैरह सर्कल में ड्रॉ करते हैं, तो इसको सब हम इस तरह से लेते हैं कि जो डायमीटर है, डायमीटर का जो हाफ है वो उसका रेडियस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रेडियस यहाँ तक है आपका, ठीक है, क्या आपके पास एटम का रेडियस है, हाफ है, सो इट इज द रेडियस R1, ठीक है। अच्छा एटॉमिक रेडियस के लिए क्या जरूरी है कि 2 सिमिलर एटम विल बी एडजस्टेड टू ईच अदर, व्हाट इज मीन बाय एडजस्टेड, एडजेसेंट मीन बिल्कुल सेम एटम एक दूसरे के साथ, सेम एटम, ठीक है ना, एडजेसेंट एटम बिल्कुल सेम एटम जो है, सिमिलर एटम जो है वो एक दूसरे के जो उनकी न्यूक्लियस है वो एक दूसरे के साथ साथ हो, एक दूसरे से अटैच हो, कांटेक्ट में हो, राइट। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट न्यूक्लियाई ऑफ 2 सिमिलर एटम, यानी 2 एटम है, 2 एटम की जो न्यूक्लियाई है वो बिल्कुल आपस में एडजेसेंट है, साथ साथ है, ठीक है ना, कांटेक्ट में है, टच में है। सो जो इनका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये दूसरे एटम का, ये सिमिलर एटम है, लाइक हाइड्रोजन का एटम है तो ये हाइड्रोजन का एटम है, तो ये भी हाइड्रोजन का ही एटम है, ठीक है, तो सेम साइज होगा, सेम एटॉमिक नंबर वगैरह होगा, ठीक क्लास, रेडियस भी सेम होगा, ठीक है। सो इट इज R1 R2, यानी R1 फॉर द हाइड्रोजन 1 एंड R2 फॉर द हाइड्रोजन 2, राइट। सो इट विल बी द एटॉमिक रेडियाई ऑफ दिस एटम, ओके क्लास, यानी द कंडीशंस आर दैट एटम शुड बी सिमिलर एटम होने चाहिए, न्यूक्लियाई शुड बी एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी जो है आपस में कांटेक्ट में होने चाहिए, टच में होने चाहिए, न्यूक्लियाई जो है आपस में बिल्कुल करीब होने चाहिए, ठीक है, एटम करीब होंगे तो इनकी न्यूक्लियाई भी करीब होंगे, ठीक है। और जो है उसका जो हम रेडियस निकालेंगे, यानी हाफ द डायमीटर हम निकालेंगे, रेडियस इसका फाइंड आउट करेंगे, दोनों का रेडियस जो हम फाइंड आउट करेंगे तो वो उनका एटॉमिक रेडियस, यानी रेडियस प्लस रेडियस, प्लूरल है ना, 2 रेडियस है तो प्लूरल हो गया, तो रेडियस प्लस रेडियस दैट विल बी द एटॉमिक रेडियाई, तो वो जो एटॉमिक दैट इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई जो है बस प्रैक्टिकल वर्क के लिए हमें कहीं इसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक प्रॉपर्टी है जो रिक्वायरमेंट होती है तो उसको स्टडी करने के लिए एटॉमिक रेडियाई मालूम किया जाता है, ठीक है। अच्छा क्लास, एटॉमिक रेडियाई इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इट्स यूनिट इज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम साइंटिस्ट थे तो उन्होंने मालूम किया था, इसकी यूनिट बताई थी उन्होंने, तो इसलिए इसके यूनिट को एंगस्ट्रॉम का ही नाम दिया गया है, ठीक है ना। इस यूनिट इज नोन एज द एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इट इज शोन एज ए, और इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं क्लास, लाइक डिग्री सेंटीग्रेड होता है वैसे एक छोटा सा सर्कल शो करते हैं, राइट। और इट इज आल्सो शोन बाय, और इट इज आल्सो शोन AU, यानी एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट क्लास। And 1 angstrom unit is equal to 10 raised to power 1 angstrom unit is equal to 10 raised to power minus 8 centimeter, ठीक है। It is very small unit, बहुत small unit है ये, ठीक है। 1 angstrom is equal to 10 raised to power minus 8 centimeter, यानी जो सेंटीमीटर है उसके जो है और बहुत स्मॉल पार्ट्स किए जाएं, -8 तक का इसका पार्ट लिया जाए तो ये आपके पास 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ओके क्लास। सो इट इज द एटॉमिक रेडियाई। अच्छा वैसे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, कुछ फर्दर और पॉइंट्स देखते हैं क्लास। द एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज इन एन एटम। एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है, किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ शेल्स पे, यानी जितने नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतना एटॉमिक रेडियस लार्ज होगा, ठीक है। एटॉमिक रेडियस वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस, जब एक रेडियस की बात करेंगे तो हर
इस रेडियाई में भी वही होगा, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल यानी नंबर ऑफ शेल जितने ज्यादा होंगे उतना उसका एटॉमिक रेडियाई भी ज्यादा होगा। लाइक अगर किसी एटम में सिर्फ के शेल है, राइट, हाइड्रोजन कैरीज कंटेन्स ओनली के शेल, तो इसका जो है साइज वॉल्यूम इसका कम होता है। सोडियम कंटेन्स द KLM शेल, ठीक है। सोडियम में 3 शेल होते हैं तो उसका साइज भी ज्यादा होता है, उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ठीक है। सो एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, एंड डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, यानी इसके ऊपर चार्ज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, या किस तरह का चार्ज है, ठीक है ना, और इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कैसे है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, नाउ class again in the period in the periodic table the atomic radii increase down the group, ठीक है। atomic radii increase down the group from up to down the group, यानी जैसे जैसे आप लाइक ग्रुप है क्लास, ठीक है ना, जब अप साइड से अपर साइड से, ठीक है ना, अप टू डाउन आएंगे आप, ठीक है ना, अप टू डाउन मूव करेंगे, यानी एलिमेंट्स अप टू डाउन चेक करेंगे, तो जाहिर है एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एटॉमिक नंबर कुछ होगा, यहाँ पे इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा, ठीक है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा इसका मतलब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे, राइट, तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे इसका, तो जो है इसका जो एटॉमिक साइज है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करेगा, एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, राइट। इसका मतलब जब एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इसका वॉल्यूम का एटॉमिक वॉल्यूम के एटॉमिक साइज का अगर हम रेडियस निकालेंगे तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, राइट क्लास, ठीक है। आई गिव यू एग्जांपल, आपको एग्जांपल चाहिए क्लास, तो आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम की। मैं आपको एग्जांपल लिथियम की एग्जांपल देती हूँ, हाइड्रोजन एंड सोडियम की चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। लाइक हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इज 1, न्यूट्रॉन इज 0, ठीक है। अब इसका के शेल है, ठीक है, एक ही ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है ये, तो ये के शेल है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, के शेल 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अच्छा, अब सोडियम की एग्जांपल देखते हैं, इट इज हाइड्रोजन, ठीक है। अब इससे अगर हम नीचे आए, फर्स्ट ग्रुप देखें, अगर इससे हम जब नीचे आएंगे तो हाइड्रोजन के बाद है आपके पास, हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, फिर सोडियम है, ठीक है ना, लिथियम फिर सोडियम, यानी थर्ड नंबर पे सोडियम है, ठीक है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपके पास, 11 है, ठीक है, सोडियम, राइट, Na, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 11। सो प्रोटॉन आर 11 हियर, न्यूट्रॉन आर 12 हियर, यू नो दैट मास नंबर इज 23। अच्छा, in the K shell there are 2 electrons, K shell, L shell 8 electrons, M shell 1 electron, K L M। अब देखें नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका रेडियस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, इसका रेडियस कम है, ठीक है, क्योंकि एक ही शेल है, एक ही ऑर्बिट कंटेन कर रहा है ये, राइट क्लास। तो इसका मतलब डाउन द ग्रुप आप और नीचे आते जाएंगे, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो नंबर ऑफ शेल भी उसके उसी हिसाब से इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। बट in a period the atomic radii decrease from left to right due to the increase in number of protons, ठीक है। लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं होता, पीरियड में जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो लेफ्ट टू राइट जो है जो एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज करता है, यानी लेफ्ट टू राइट इस तरह जाएंगे हम पीरियड में, लेफ्ट टू राइट, तो क्या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई विल डिक्रीज, एटॉमिक रेडियाई will decrease, right? Why it will decrease? Because the number of proton will increase, यानी number of nuclear charge will increase, ठीक है ना। number of proton means number of nuclear charge, जितने प्रोटॉन होंगे उतने चार्ज होगा ना, तो number of nuclear charge will increase, ठीक है। nuclear charge increase करता है, ठीक है,
या जब इस तरफ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर, यू नो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड इट इज द न्यूक्लियर चार्ज. Atomic number, it is the nuclear charge. It shows the nuclear charge, right class? Number of protons shows the number of electron shows the nuclear charge, ठीक है। तो जाहिर है जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल पे कि जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इसका जो है न्यूक्लियर चार्ज भी वो इंक्रीज करता है, ठीक है। सो द एटॉमिक रेडियस, इसलिए एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, राइट क्लास। अच्छा, अब यू कैन सी इन द टेबल, आप टेबल में नहीं क्लास, बेरिलियम, ठीक है, यू कैन सी इन द बेरिलियम, ठीक है। एटॉमिक अगर ग्रुप वाइज देखें, बेरिलियम है, इट्स एटॉमिक रेडियस विच हैज बीन कैलकुलेटेड बाय द साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट है उसकी कैलकुलेशन के थ्रू हमें बताया है, दैट इज 1.12, मैग्नीशियम इज 1.36, कैल्शियम इज 1.37 एंड स्ट्रोंशियम में 2.16, बैरियम इज 2.22, ठीक है। इस तरह से आपके पीरियड में देखिए आपके पास एटॉमिक रेडियाई इन एंगस्ट्रॉन इन द पीरियड, दैट इज सोडियम इज 1.51, मैग्नीशियम 1.36, एल्यूमिनियम 1.25, देखिए ये डिक्रीज कर रहे हैं सारे। सिलिकॉन 0.77, फास्फोरस 0.70, सल्फर 0.66 और क्लोरीन 0.64, बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है पे डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक इनका कनेक्शन बनता है इस तरह से। ओके क्लास, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी, इट इज आल्सो द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम, आयनाइजेशन energy, written as IE. Okay, ionization energy. What is the ionization energy? The minimum energy required. Okay, minimum energy which is required to remove an electron from a gaseous atom in its ground state is known as the ionization energy. Okay, minimum energy required to remove an electron from a gaseous atom from a gaseous atom in its ground state. Its ground state is known as the ionization energy. Okay, what is meant by the ground state? Ground state means outermost shell, ठीक है, बिल्कुल आखिरी वाला शेल outermost shell, ठीक है ना। और gaseous atom means the atom must be in the gaseous form, ठीक है। अच्छा, तो वो देखिए जब हम किसी एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम, ठीक है, सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर है, अभी मैंने ड्रॉ किया था, ठीक है। अच्छा, या हाइड्रोजन की एग्जांपल है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन दिस इज इन गैसेस स्टेट, सॉरी, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में होता है। अब हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है क्लास? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होता है। तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम से कम एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी जो हम यूज करेंगे, ठीक है, वो क्या होगी? उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी, राइट। एन एटम शुड बी इन द गैसेस स्टेट, और उसके जो ऑटोमोस्ट शेल, जो हाइड्रोजन का ऑटोमोस्ट शेल क्या है? के शेल है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसके जो ऑटोमोस्ट शेल से उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाएगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज, एटॉमिक वॉल्यूम कह सकते हैं, एटॉमिक साइज कह सकते हैं इसको। एटॉमिक साइज यानी नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है क्लास। एक ही बात दो तीन तरह से कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है कम है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, ज्यादा है कम है, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज के ऊपर, नंबर ऑफ शेल के ऊपर
और न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है। अच्छा, द हायर द आयनाइजेशन एनर्जी द मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाना डिफिकल्ट होता है, इसलिए जो है हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाया जाए, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाया जाए। अगर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है तो हो सकता है कि हमें एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दे। तो मिनिमम एनर्जी चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने, उसके हिसाब से हमें एनर्जी चाहिए, वो कहलाती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सो इफ यू कैन सी द इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस एनर्जी एरो H प्लस E, ठीक है। इक्वेशन देख लो, उसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस एनर्जी H प्लस E, आयनाइजेशन एनर्जी इज 1312 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल में इतनी, यानी अगर हाइड्रोजन की हमारे पास 1 मोल है तो उसमें 1312 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है रिक्वायर्ड होगी ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर पाए। यानी पर मोल में बहुत सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, अनकाउंटेबल हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। इसलिए उसके लिए एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज मीन बाय द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी required to remove an electron, the minimum energy required to remove an electron from its ground state, from ground state means outermost shell, is known as the first ionization energy। यानी जो सबसे ऑटोमोस्ट शेल है, बाहर वाला शेल है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को या एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए कहाँ से, उसकी ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से यानी ऑटोमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जो कम से कम एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए, वो कहलाती है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। What is the second ionization energy? Second ionization energy, ठीक है। Minimum energy required to remove 2 electrons from ground state is known as the second ionization energy. Third ionization energy वो भी ऐसी होगा कि the minimum energy required to remove 3 electrons from ground state is known as the ionization energy. Right class? That is all about the ionization energy. You can see in the graph. देखिए ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे आयनाइजेशन, ठीक है। दिस द आयनाइजेशन पोटेंशियल है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है और एटॉमिक नंबर है, दोनों के बीच में आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक नंबर Z और आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इनके बिटवीन जो है ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है जो रिकॉर्डेड है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज बताई गई है, लाइक जो है आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, जहाँ पे पॉइंट्स का मतलब कि जो डॉट है, जहाँ पॉइंट है, उसको वहाँ पे एटम को मेंशन नहीं किया गया, ठीक है। इसको नाम नहीं दिया गया, बहुत नंबर ऑफ एटम्स है, तो कुछ खास एटम को इसमें मेंशन किया गया, लाइक हीलियम है, हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप पे जा रही है, ठीक है। इस तरह से देखिए, फिर नीचे बिल्कुल डाउन पे आ रहा है लिथियम पे, ठीक है। इस तरह से फिर देखिए बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं, पॉइंट्स की नेम गिवन नहीं है, मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे, लेकिन जो है बेरिलियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे एलिमेंट्स है यहाँ पे, और कुछ का जो है कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पे लिखा हुआ नहीं है उनका, ठीक है। ये कि आपके पास नियॉन है, तो इस तरह से अप एंड डाउन जो है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो रिकॉर्डेड है वो साइंटिस्ट ने यहाँ पे हमें बताई है। ओके क्लास।